I request you to like and subscribe my channel and watch full video. Hello my dear all subscribers and all the new page visitors. I am Hari. आज मैं आपको स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स और स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में I will tell you the basic principles. What is statically indeterminate structures and statically indeterminate structures? Why it called the static word in the indeterminate structures? What are the total indeterminacy of structures? What is the internal indeterminacy of structures? What is the total external indeterminacy of structures? And what is the redundant? मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा. Let us learn and grow. Please watch my full video. And if you are new visitors, you are requested to like and subscribe my channel. The statically indeterminate structures are those which can be solved with the help of three known equations of equilibrium. That is called the statically indeterminate structures. What are the three known equations of equilibrium? इसके मदद से जैसे समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू 0. दिस इज द थ्री यूनिवर्सल नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. प्लीज रिमेंबर इट. और किसी भी स्ट्रक्चर्स को यदि हम ये थ्री नोन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिसोल्व कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. नाउ मैं बार बार आपको स्टैटिक क्यों कह रहा हूं? देयर इज टू वर्ड, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक मीन्स व्हिच आर स्टेबल एंड नॉट अलाउड टू मूव. इट इज assumed that it will not move. But dynamic means which is moving. For any machine or the dynamic forces at the time of earthquake forces, that is dynamic analysis of structures. हमारे जो भी बिल्डिंग्स है या ब्रिजेस है और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसमें हमें क्या होता है, वी नेवर अलाउड टू मूव फ्रॉम इट्स पोजिशंस. यदि ये बीम है जैसे आप देख रहे हैं, वी नेवर अलाउड टू मूव फॉर इट पोजिशंस. तो सभी को हम एज ए स्टैटिक एनालिसिस के रूप में कहते हैं. मे बी स्टैटिकली वर्ड है उसमें लगा जाता है, मे बी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, मे बी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. दिस वर्ड स्टैटिक मीन्स इट इज नॉट अलाउड टू मूव. नेक्स्ट, अब व्हाट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स? हम शॉर्ट में लिखते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. एनी स्ट्रक्चर्स cannot be solved with the help of these three known numbers of equations. Then the same structure become the statically indeterminate structures. That is, for any kind of structures, if the unknown equations and reactions or unknown forces in the member, if you find that this is more than 3, then these equations become statically indeterminate structures. For example,
जस्ट प्लीज सी है। उसी तरह अगर ज्यादा सपोर्ट लगा हुआ है, 2 हिंज लगा दिया, एक रोलर लगा दिया, देन यू शुड कैलकुलेट हाउ मेनी reactions are developing due to support reactions. Suppose unknown reactions is 4 और आपकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी 3 होते हैं। तो ये आपकी यहां से अगर माइनस कर देंगे तो इसकी 1 हो गई, 1 डिग्री। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बाय डिग्री 1 एंड इफ देयर इज अननोन इक्वेशंस इज मोर देन 3 देन the structure cannot be solved with the help of known equation of equilibrium and the structure become statically indeterminate structures. Please remember it. Structure कैसे solve करेंगे? To solve the statically indeterminate structures, we have to assume certain compatibility equations and deformation condition for the beam or frames. उसमें एक redundant, this word redundant word is coming. Know more about the redundant, which is very important. होती है redundant is a unknown forces. Statically indeterminate structure को solve करते समय हम देखते हैं कि कितने रिडंडेंट फ्रेस मीन्स अननोन रिएक्शंस कितने हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। This example will clear your concept how to know redundant. Okay. Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। The numbers of unknown reactions are called redundant. Let us see one example here. Suppose this is F, this is also okay. This is a plane frame in 2 dimensionals having degree of statically indeterminacy and also degree of indeterminacy internally. This is D and this is hinge, this is hinge. Okay. अब इसमें आप देख ले, here is one force R A V, okay, और here horizontal force R A H, okay. Due to hinge support there is 2 forces, okay. Again यहाँ भी hinge support है, एक vertical forces. Due to hinge support at D, you will also get one reaction vertically and one reaction Let us call it horizontally. R D H, okay. There are 4 unknown equations. तो 4 unknown equation हुए, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि this become the externally indeterminate structures. हम आगे भी समझेंगे। हम करें कि redundant, what is redundant here? तो यहां पर आपकी टोटल 4 फोर्सेस हो गए, this one, this one, this one and this one. Total numbers of unknown reactions is 4, okay. But known equation of equilibrium is 3. So 4 minus 3 you will get 1, okay. Then 1 means 1 2 3 4, ये 4 जो रिएक्शंस है, तो let us suppose that, suppose here
ये जो आर डी एच है, दिस इज अननोन, ये वन नंबर ऑफ, ये तो नॉन ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम है। तो जो 4 माइनस 3 1 जो हुई, हम इसको लेट सपोज दैट दिस इज अननोन मोर देन 3, दिस इज अननोन फोर्सेस आरडीएच। हियर आरडीएच बिकम redundant, so RDH become redundant। ये 4 फोर्स में ये कोई भी हो, चाहे RA भी हो, RAH हो, 4 में से एक आपका रिडंडेंट फोर्स है, उसी को हमको रिजोल्व करना है, उसको रिलीज करना है। ओके, देन दिस विल बी टू सोल्व द इक्वेशंस। अगेन, अगर इस फ्रेम को कंसीडर करते हैं, हम आगे देखेंगे कैसे होता है। ये आपकी इंटरनल स्टैटिकली indeterminate बाय डिग्री 1, ये हम निकालना बाद में देखेंगे, अभी जस्ट रिडंडेंट के बारे में देख रहे हैं। व्हाट इज रिडंडेंट? तो ये ड्यू टू दिस बीडी एंड एसी मेंबर, दिस फ्रेम बिकम इंटरनली स्टैटिकली इनडिटरमिनेट फॉर डिग्री 1। ओके, देन अगर हम इंटरनल इनडिटरमिनेसी की जो बात कर रहे हैं, तो अगर ये मान लिया कि दिस मेंबर, देन सपोज दिस मेंबर इज रिडंडेंट मेंबर। ओके, क्योंकि 1 डिग्री से इसकी इंटरनल इनडिटरमिनेसी है, तो नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है? 3। You will find that 4 minus 1 is equal to 3, for which this become internal indeterminate structures। तो यदि आप एक मेंबर को रिलीज कर देते हैं या रिमूव करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में आप कॉम्पेटिबल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। Here we can say that 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर, 6 मेंबर को रिजोल्व करने के बाद में हमने जब देखते हैं तो इसकी इंटरनल इनडिटरमिनेसी आती है 1 मीन्स आप अगर इस फ्रेम को एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज अननोन फोर्सेस हियर एंड दिस इज रिडंडेंट मेंबर, और यू कैन आल्सो एज्यूम बीडी, नो प्रॉब्लम्स। कोई भी मेंबर जिसको हम रिडंडेंट मानेंगे, कोई एक मेंबर को एज्यूम करना होगा और उसके अगेंस्ट में कंपैटिबल इक्वेशन बनाना होगा। मींस अननोन फोर्सेस और इक्वेशंस जिसके अगेंस्ट में हमें कंपैटिबल इक्वेशन डेवलप करने पड़ेंगे। One is total static indeterminacy। What is this? ये टोटल क्या होता है? The internal plus external static indeterminacy of a structures। Internal plus external static indeterminacy of a structures, if you find, ये दोनों मिला करके टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कहते हैं। नाउ लेट अस कम व्हाट इज इंटरनल इनडिटरमिनेसी। इंटरनल स्टैटिक
determinacy. It is due to the unknown forces prevailing in a member. Due to that, it becomes the statically internal indeterminate. Means there may be 2 or 3 or 4 members where there are unknown forces developed more than the equation of equilibrium. Then that member we called as a redundant member, and due to that redundant member, the structure become statically internal indeterminate structures. Let us see to clear the concept. Suppose here this is the frame. Okay, this is the frame, and there are 1, 2, 3, 4, 6 member. In this member, it will become the statically indeterminate structures. That is, numbers of unknown forces, numbers of unknown forces in frame makes the numbers of unknown forces in a frame make a structure statically indeterminate. For example, if you calculate with a certain formula, which we'll discuss on later date, this is internally static indeterminacy by degree 1. That is, 6 मेंबर से एक मेंबर जो है अपना redundant member है, और due to that member this structure become statically indeterminate by degree 1. That is the redundant member. कोई भी redundant member ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी assumptions हम करते हैं जो कि एक डिग्री से है इसकी इंटरनल इनडिटरमिनेसी, देन ये 6 मेंबर में से कोई एक मेंबर आपका रिडंडेंट होगा. सो ड्यू टू रिडंडेंट मेंबर्स इन ए फ्रेम द स्ट्रक्चर बिकम स्टैटिकल इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. व्हाट इज एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स? कोई भी स्ट्रक्चर में यदि हम रिएक्शन को, सपोर्ट रिएक्शन को कंसीडर करते हुए और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं, व्हेन इट इज मोर देन 3, अगर 5 अगर रिएक्शंस हमारे हैं तो 5 - 3, 2 जो होगी वो डिग्री होगी उसकी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की. सो बाय द एग्जांपल वी से दैट एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी ऑफ ए स्ट्रक्चर अकर्ड ड्यू टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स. एक एग्जांपल देखने से आपको क्लियर होगा. सपोज this is a 2-dimensional frame. ये हिंज की सिंबल है, तो यहां पर आपकी नंबर्स ऑफ रिएक्शंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, VH. यहां भी आपकी एक V और एक H होगी. देन नंबर ऑफ support reactions okay
the numbers of support reactions is the 2 and here is the 2, 4. ओके, हिंज के लिए दो रिएक्शंस होते हैं, वन वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोथ आर हिंज सपोर्ट. तो इसके लिए कितने होंगे, 2 + 2, 4. ओके, और नंबर्स ऑफ नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं हमारे, 3. तो यहां से आप 3 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगी, 1. दिस इज द डिग्री, this is the degree of external static indeterminacy. Okay, then this structure is external indeterminate by degree 1. See, ये तो हमने फ्रेम के बारे में देखा, total static indeterminacy, total statically internal indeterminacy and external indeterminacy of structures. अब बीम के लिए क्या होती है, total static indeterminacy of a beam बारे में डिस्कस करते हैं. टोटल एक्सटर्नल indeterminacy of a beam is due to external support reactions only. क्योंकि जो बीम हमारे होते हैं उसमें हम मेंबर्स को एज्यूम करते हैं कि इसमें कोई तरह का इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं होंगे. ओके, स्पेशली फॉर बीम. लेट अस सी. और यदि कोई सिचुएशन अगर ऐसा आती है कि कोई बीम अगर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हो रहा है तो उस केस में हम इंटरनल हिंज देते हैं. ओके, इंटरनल हिंज दे करके उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसकी मेंबर में फोर्सेस निकालते हैं और रिएक्शंस निकालते हैं. एक एग्जांपल से, सपोज दिस इज ए, See the propped cantilever. तो इसकी एक एंड फिक्स है, देन इसकी नंबर्स ऑफ इक्वेशंस 1, 2 एंड दिस इज 3. 3 नंबर्स होंगे, एक वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट ए. ओके, और चूंकि दिस इज 1 वर्टिकल रिएक्शन तो यहां पर 1 रिएक्शन होंगे. देन टोटल इस बीम की टोटल नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी क्या होगी, द सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कि दिस इज 3 + 1 = 4. ओके, हम कहेंगे कि दिस प्रोप कैंटिलीवर इज एक्सटर्नल और टोटल इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बाय डिग्री 1. उससे -3 करेंगे तो 1 आएगी. Okay, this is the degree of total static indeterminacy of this beam. Okay, now other condition हम लेंगे. Now please see the other example how we calculate the statically external indeterminacy of a beam. You will get this end is fixed. You will get the 3 reactions, 1 and this is 2 and this is 3. 1 vertical reactions, horizontal reactions, 1 moments. Okay, for fixing 3. This support is on roller and this on roller. Then you will get 1 here, 1 only vertical reaction here. The total numbers of support reactions is equal to total support reactions is equal to support reactions equal to, here is 3, 1, 1. Then total 3 + 1 + 1, total 5. Okay.
now you have to, this is the hinge. Okay, so additional condition is here for hinge. This is one additional conditions is generated here due to hinge supports. Okay, तो इसको डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेशन निकालने के लिए इस बीम की ये 5 में से क्या करेंगे हम, नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज 3 और जो एडिशनल कंडीशंस इस हिंज के कारण जो डेवलप हुए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां 3 नहीं माइनस करके हम करेंगे 4। 3 तो नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, अब ये हिंज के लिए एडिशनल कंडीशंस यू हैव टू डेवलप हियर। सो 5 माइनस 4 इसकी आपकी स्टैटिकली indeterminacy of this beam will be 1. Remember, 5 minus 3 2 नहीं होगा। यहां पर आपको चूंकि हिंज आपने यहां दिया, हिंज रखा हुआ है, इसीलिए 3 नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस 1 ड्यू टू हिंज, आपको यहां 4 माइनस करने पड़ेंगे। देन 5 minus 4 is equal to 1 is the total statical indeterminacy by degree 1 of these structures. Dear all subscribers and new page visitors, I have tried my best to deliver learning. वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ लर्न किए होंगे, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल को एक रेड सब्सक्रिप्शन बटन जरूर डैश कर दें और सभी दोस्तों, सभी सब्सक्राइबर्स न्यू पेज विजिटर्स आग्रह है कि एक लाइक बटन डालें और प्लस अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाएं। प्लीज फॉरवर्ड माय वीडियो टू द नीडी पर्सन सो दैट दे विल आल्सो बेनिफिटेड। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS Tech गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।